Hello, students. I'm continuing with the series of problems for IIT aspirants. Every day I upload a problem, which is which are expected problems, which are expected to be asked at the IIT level or advanced level or JEE level. Even NEET students can also be benefited by trying to understand these problems. इस साल का जो नीट का पेपर था उसका यही है कि आपको नीट वालों को भी ये चीजें सीखनी पड़ी दे विल आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दीज गुड नाइस हायर कॉन्सेप्ट्स क्योंकि नीट और आईआईटी का पेपर अब उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इस साल 2025 के पेपर में जो नीट का पेपर था उसे ये साबित हुआ। ये जो क्वेश्चन है फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है। A capacitor with a moving dielectric। क्वेश्चन ये है कि इस कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक है और इट हैज बीन चार्ज्ड टू द पोटेंशियल V0। तो ये चार्ज भी निकाला जा सकता है। उसपे चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज C capacitance of this capacitor and applied voltage. So it has been fully charged and the potential difference between these two plates is V0 because it has already been fully charged. So what is the question? The question is you try to pull out this dielectric outside with a velocity v. You are pulling it out. जब आप इसको pull out कर रहे हो तो आपको लगता है कि something is going to happen or some new phenomena is going to take place here. इसके बारे में जरा सोचो थोड़ा सा pause थोड़ा कर लो और सोचो इसके बारे में. The moment you try to pull it out, what happens? And you are pulling it out with a constant velocity v. What will happen? I will tell you. There's a backward force. There's a drag force in the backward direction. That means ये जो कैपेसिटर है ये इसको बाहर जाने नहीं देगा, ये इसको वापस ड्रैग करने की कोशिश करेगा. तो हमें वही पीछे वाला ड्रैग फोर्स निकालना है. अब आप यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं why should there be a drag force in the back direction? वजह यह है कि आप इसको you want to take it from electric field जो within the capacitors to the region of no electric field. आप इसको electric field region से लेकर के आप no electric field region में ले जाना चाहते हैं. तो जब आप इसको बाहर की ओर ले जाना चाहते हैं from stronger field to weaker field or from stronger field to no field, there is always a force on dielectric on uncharged bodies from weak field to strong field. So force will be from weak field, that is here, to a strong field, and there is a fringing at the edges. ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी वैल्यू से जाकर के जीरो हो जाता है इमीडिएटली. देयर इज अ फ्रिंजिंग. द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस ग्रेजुअली एट द एंड्स, एट द एड्ज. फ्रॉम स्ट्रॉन्गर फील्ड टू वीक फील्ड देयर इज अ फ्रिंजिंग, मींस देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑन द एट द एड्ज. ठीक है, बाहर तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, लेकिन from inside to just outside there is a fringing. Fringing means the electric field does not die very quickly or abruptly. It dies over a little distance. So the concept is that the force on this dielectric will be from weaker field to stronger field. That means ये force इसको पीछे लाने की कोशिश करेगा. My question is, what is that force? How much is that force? What is the magnitude of that force? That is all. The force on the dielectric. ये हमें निकालना है. बाहर की ओर इसको ले जा रहे हैं आप, तो और कैपेसिटर जो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको पीछे पुल करने की कोशिश करेगा. Because there is a force on the dielectric, of course the dielectric is uncharged, it will be pulled from weaker field to stronger field. ये concept वहां पर भी है. If you place some magnetic object in the magnetic field, it always goes from weaker field to stronger field if it is a ferromagnetic substance or paramagnetic substance. It always goes from weaker field to stronger field. Okay, now what should I do? First of all, it is an electric field here. It is an electrostatic field. Electrostatic field, as you all know,
Anybody and everybody knows that the electrostatic field is a conservative field. And in conservative field, you know what are the equations that you use for the conservative field. Force is equal to negative of the potential energy gradient. Force on this will be, F will be minus du by dx. How much potential energy varies? Potential energy variation with respect to x is the force. So first of all, I would try to find the potential energy. I will try to find the energy of the capacitor. That is always potential energy. ठीक, तो पहला चीज में क्या करूंगा? स्टेप नंबर 1, पहले स्टेप में क्या करूंगा मैं? पहले मैं कैपेसिटर निकालूंगा, कैपेसिटेंस. The moment you drag it out by a distance x, तो ये x यहाँ खाली हुआ, तो बाकी तो यहां से यहां तक समझो इट इज L minus x. अगर L is the length of the capacitor प्लेट, ये लेंथ, तो कैपेसिटर अगर प्लेट ऊपर है तो L into L स्क्वायर इज एरिया. तो पहला स्टेप ये है कि मैं कैपेसिटेंस निकालूंगा. सो व्हाट इज C? दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्पॉट, दैट इज एप्सिलॉन 0. व्हाट इज एरिया ऑफ दिस स्पॉट? अगर ये x है तो एरिया क्या होगा? दैट इज A by L into x. x पार्ट का एरिया, क्योंकि अगर ये लेंथ L है, हाँ, इस लेंथ इट इज समथिंग लाइक दिस. L लेंथ का एरिया समझो A, तो 1 मीटर बाय L, तो x मीटर्स इंटू x है. दैट इज, मतलब पहले तो एरिया जो है L इंटू दिस डिस्टेंस. अगर दोनों को L लेंगे आप, स्क्वायर प्लेट लेंगे तो L एंड L. सो L स्क्वायर इज A. L स्क्वायर इज A. लेकिन ये भी किया जा सकता है, फॉर L लेंथ area is A, for 1 meter it is L, for x meters the area will be A by L into x. तो प्लस K टाइम्स, अगर इसका डेल्टा कांस्टेंट K है, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A by L माइनस x. ये वाला लेंथ यहां से यहां तक. तो ये कैपेसिटेंस निकला, क्योंकि ये कैपेसिटेंस वैक्यूम पार्ट कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक पार्ट कैपेसिटेंस जो है ये पैरेलल में है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस between this point and this point is the same between this point and this point. When potential difference and voltage across different points is the same, then those elements are said to be connected in parallel. That is the definition for parallel combination. When the potential difference or the voltage across different electrical elements is the same, then they are said to be connected in parallel. That's the base definition for parallels. So C is equal to, चलो यहां पर मैं क्या करूं, चलो इसको कर दो एप्सिलॉन 0 A by L, अंदर रहेगा ये x प्लस K टाइम्स L माइनस KX. ये है हमारा कैपेसिटेंस. अब मुझे बताइए, अगर ये कैपेसिटेंस है तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? What is the energy of the capacitor? The energy of the capacitor is U is equal to 1 by 2 CV0 square, as you know. That is potential energy is equal to 1 by 2 C को वैल्यू दीजिए, that is epsilon 0 A by L x plus KL minus KX. ठीक है, V0 square. ऐसे कुछ. तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकला. अब फोर्स इस पर क्या है, इस डायरेक्ट पर फोर्स क्या है, हमें इसी पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बिकॉज एज यू नो फोर्स इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाला, अब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. So du by dx is equal to 1 by 2 कांस्टेंट, एप्सिलॉन 0 भी ऐसे लिखना पड़ेगा, A by L भी ऐसा ही लिखना पड़ेगा, कांस्टेंट जो है. तो अंदर डिफरेंशिएशन शुरू होगा. इसका हो गया 1, इसका हो गया KL, both are constants, K is constant, L is constant, so product is also a constant. Therefore इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस KX का K. ये कांस्टेंट है, x का 1 है. ठीक, तो ये हमारा है
डिफरेंशिएशन, इसको पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट भी कहा जाता है। ठीक, तो अब फोर्स कितना होगा, ड्रैग फोर्स बैकवर्ड्स, दैट इज नेगेटिव ऑफ दिस। Negative just means it is in the opposite direction, right? So it is du by dx, that is equal to minus 1/2, ये लिखना पड़ेगा, एप्सिलॉन 0 a by l, एप्सिलॉन 0 a by l 1 minus k। ठीक, मगर देखो ये जो d है ना, इट इज मिसिंग समवेयर, तो शायद मैंने गलती की है कैपेसिटेंस निकालने में। जो मैंने पहले ही लिखा था कैपेसिटेंस का इक्वेशन, वो ऐसे था, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 a बाय l x होल डिवाइड बाय d, दैट इज एप्सिलॉन 0 एरिया बाय d। ये है एरिया ऑफ x पार्ट, इस पार्ट का एरिया। तो ये मैं भूल गया था लिखना, क्योंकि मुझे लास्ट में पता चला कि देयर शुड बी d इन द डिनोमिनेटर, तो वो d यहां पर भी आएगा, वो d यहां पर भी लिखना पड़ेगा, और वो d यहां पर भी लिखना पड़ेगा। लेकिन पहले ही जो कैपेसिटेंस मैंने निकाला वहां आप थोड़ा सा करेक्शन कर लो, तो इट विल बी प्लस k टाइम्स a बाय l माइनस x बाय d अगेन। तो जो मैंने पहले कैपेसिटेंस का इक्वेशन लिखा वो इस d के बगैर लिखा था, दैट्स माय मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब ये लिखना वहां पर, ताकि आप यहाँ d को इंट्रोड्यूस करो। यहां पर भी किया मैंने इंट्रोड्यूस, यहां पर भी इंट्रोड्यूस किया, यहां पर भी इंट्रोड्यूस मैंने किया। तो F इज इक्वल टू फोर्स फाइनली, दैट्स 1/2 एप्सिलॉन 0 a l d k माइनस 1। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मैंने एब्जॉर्ब कर दिया, यहां नेगेटिव को बाहर निकालकर इसके साथ मल्टीप्लाई किया। दिस इज द फोर्स ऑन द डायइलेक्ट्रिक इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। वेरी गुड क्वेश्चन। दो प्लेट्स है, बीच में डायइलेक्ट्रिक है, आपने डायइलेक्ट्रिक को बाहर निकालने की कोशिश करोगे, देयर इज अ बैकवर्ड फोर्स, दैट मींस कि आपको द कैपेसिटर विल नॉट अलाउ यू टू ड्रैग द डायइलेक्ट्रिक आउट ऑफ द कैपेसिटर। ठीक, तो अब आप सोच सकते हो खुद भी कि देखो अगर मैं ये बैटरी को खत्म करूं तो यहां चार्ज होगा, तो उस सूरत में अगर आप बाहर निकालने की कोशिश करोगे उस सूरत में कितना फोर्स होगा। उस सूरत में पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि बैटरी हैज बीन डिस्कनेक्टेड। उस सूरत में जहां यहां का चार्ज कांस्टेंट रहेगा, तो उस सूरत में आप 1/2 cv0² नहीं लिखोगे, उसमें लिखोगे 1/2 c नीचे q स्क्वायर, because it is the q now, it remains constant. That is the exercise for you। अगर आप करना चाहो तो कर लो कि अगर ये वोल्टेज सोर्स को डिस्कनेक्ट करो और फिर डायरेक्ट को बाहर निकालने की कोशिश करो और देखो कि हाउ मच इज द फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। दिस इज IIT एडवांस्ड लेवल प्रॉब्लम, इसको कर लो अच्छी तरह से और फिर और भी चीजें इसके बारे में सोचो। राइट, ओके, थैंक यू।